1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, हिब्रूज 13 चैप्टर, एजेकियल 16 चैप्टर, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और यहेजकेल की भविष्यवाणी 16 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पवित्र आत्मा, तेरे बिना वचनों को समझना असंभव है। हमें तेरे वचन सिखा और इन वचनों के अधीन आकर परमेश्वर के जीवन में आनंद उठाने के लिए हमारी सहायता कर। ईश्वरीयता के रचना में हमको ढल कर लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे हिब्रूज 13 चैप्टर, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। हिब्रूज 13 चैप्टर। Let brotherly love continue. Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. Remember them that are in bonds, as abound with them, and them which suffer adversity, as being yourselves also in the body. Marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. हालेलुया। ये 4 वचन को याद रखिए आप। ओके। Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. ये है 5 वचन। आपको याद रखना है कि हमको परमेश्वर के आज के समय में जिस प्रकार से चलने का अवस्था है, उस चलने की अवस्था में ये एक 5 वचन को हमने एडिशन करना है। ठीक है। 6 वचन से पढ़ेंगे आगे, 6 वर्ष से आगे। सो दैट वी मे बोल्डली से द लॉर्ड इज माई हेल्पर, एंड आई विल नॉट फियर व्हाट मैन शैल डू अनटू मी। रिमेंबर देम विच हैव द रूल ओवर यू, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Be not carried about with divers and strange doctrines, for it is a good thing that the heart be established with grace, not with meats, which have not profited them that have been occupied therein. We have an altar whereof they have no right to eat, which serve the tabernacle. For the bodies of those beasts whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin are burned without the camp. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. For here have we no continuing city, but we seek one to come. By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. But to do good and to communicate forget not, for with such sacrifices God is well pleased. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Pray for us, for we trust we have a good conscience in all things, willing to live honestly. But
I beseech you the rather to do this, that I may be restored to you the sooner. Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is well pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. And I beseech you, brethren, suffer the word of exhortation, for I have written a letter unto you in few words. Know ye that our brother Timothy is set at liberty, with whom, if he come shortly, I will see you. Salute all them that have the rule over you, and all the saints they have. They of Italy salute you. Grace be with you all. Amen. इन्हीं वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मसीही जीवन जीने के निर्देश, 13 अध्याय पहले वचन से। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैदी हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। हालेलुया। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। अब मैंने हमेशा आपको बोला है ना, दुष्ट का अंत निश्चित होता है, क्योंकि ये वचन है। ओके, यहाँ पे क्या दिया है? निश्चित है, ये न्याय करेगा। कहाँ बच के भागेंगे आपको सताने वाले? कहाँ बच के भागेंगे? कहाँ पर? वो खुद नहीं आए हैं पृथ्वी के ऊपर, उनको परमेश्वर के सृष्टि, मतलब परमेश्वर ने रचना किया है पृथ्वी के ऊपर उनका आने का। हाँ, अब परमेश्वर का अगर वचन वो नहीं मानेंगे, मालिक का वचन नहीं मानेंगे, तो कौन उसके लिए दूसरा जिम्मेदारी उठाएगा? कोई है नहीं। अगर मालिक उनको न्याय करेगा कह रहा है, तो मालिक को कौन रोक सकता है? हालेलुया। और फिर भी अगर कोई अपनी ढीठ अवस्था दिखाए, गंदे काम हमारे ऊपर थोप कर, तो हम उसके लिए और कुछ नहीं बोल सकते। दुष्ट का अंत निश्चित होने वाला, यही बोल सकते हैं, क्योंकि यही उसकी स्टोरी है। पवित्र बाइबल बताता है हमको। हालेलुया। देखो 5 वचन से आगे, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। ओके, तो ये 5 और 6 वचन हमारे चाल चलन में आज के दिन प्रैक्टिस करके हमारे अंदर फिट और फिक्स कर लेना है। हालेलुया। 7 वचन देखिए, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं।
क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हालेलुया। ये हमको मुंह के वचन के अंदर बोलना शुरू करना है, 12 वचन। ओके, इसलिए आओ उसको निंदा अपने उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। हालेलुया। ये भी वचन को हमने आज के दिन चलना है। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस से लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलन चाहते हैं। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। तुम्हें यह ज्ञात हो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। अपने सब अगुवों और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इटली वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। परमेश्वर हमको इन वचनों के अधीन कर और हमें इन वचनों के जो भेद है उसको हमें प्रकट करता रहे और हमें बनाता रहे। इन वचनों के आधार से हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीयता में, ईश्वरीय डिवाइन ऑर्डरलीनेस में, रचना में हमको लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।